Good morning students, I am Shanmoli Tripathi, your computer teacher, and today I will teach you chapter number 1 from class 7, that is hardware and software. Before this, we will try to know about the computer, the structure of computer and the function of computer. First of all, computer, we all know about the definition of computer, that is a computer is an electronic machine that works according to the function of IPU cycle. IPU cycle, it means input, process and output. Input, whatever we give the command to the computer, whatever we give the instructions to the computer, that is called the input. Second one is process. Process, whatever we give the command to the computer always works according to our given command, given instructions. The processing device is CPU. All the instruction which is given by the user goes to the CPU process our instruction and pass out to the output. And the function of output is output displays our result. So it is the definition of computer. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है एंड कंप्यूटर ऑलवेज वर्क्स अकॉर्डिंग टू आवर इंस्ट्रक्शन. सो आवर इंस्ट्रक्शंस विल बी always correct. If our instruction is correct, if our instruction is right, that is given to the computer gives us the right result. If our instruction is wrong, then computer never give up the right information. So it's depend to the user, then user gives information to the computer should be always right. So it is computer, and after that we will try to know about the structure of the computer. So computer is made up of with the help of two parts. First is hardware and second is software. Both the parts are very compulsory, very necessary for the computer. Hardware, all mechanical and electronical parts that we see and also touch is called hardware. कंप्यूटर के वैसे सारे पार्ट्स जिनको हम देख रहे हों, जिनको हम टच कर रहे हों, वो सारे के सारे पार्ट्स हार्डवेयर कहलाते हैं. एग्जांपल के तौर पे हमने लिखा हुआ है मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा. इसके अलावा और सारे एग्जांपल हार्डवेयर में हो सकते हैं. सो अगर हम इसका सेकेंड नाम अगर इसका हम definition जानना चाहें तो all the physical parts of the computer that we can see and touch is called the hardware. Hardware is the physical parts of the computer. Second one is software. Software, whatever commands or programs we give to the computer are called software. हम जो कंप्यूटर को जो कमांड दे रहे हों, जो हम निर्देश दे रहे हों, वो सारे के सारे हमारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं. And one thing is very necessary in software that by making it active. सॉफ्टवेयर जो होता है वो हमारे हार्डवेयर को एक्टिव रखता है. If there is no software in our computer system, then we can never do any types of work to the
ऑन टू द कंप्यूटर। इट मीन्स अगर हमारे कंप्यूटर में किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर ना रहे तो ऑल द पार्ट्स बिकेम यूजलेस, तो हमारे सारे के सारे पार्ट्स यूजलेस हो जाएंगे। सो इन कंप्यूटर स्ट्रक्चर द हार्डवेयर and the software both are very compulsory, both are very necessary. Software, it has two examples, system software and application software. System software, these are programs that run on the computer. System software वो सारे के सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम अपने कंप्यूटर पे रन कराते हैं, जिनको हम कंप्यूटर पे अपने यूज करा रहे हैं, वो सारे के सारे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, it has also two types. First is operating system and second is compilers and interpreters. Operating system is also very necessary to the computer system. If there is no operating system into our computer, we can never run any types of program onto the computer. So operating system, it has the types of system software, and second thing is compilers and interpreters. Before knowing the compilers and interpreters, we should try to know about the binary number, because computer always works according to the binary number, and binary number consists of two digits, that is 0 and 1, and all the letters, all the instruction that is given by the user goes to the compiler and interpreter. Compiler and interpreter both are the translator, and ये जो दोनों होते हैं ये हमारे सारे के सारे लैंग्वेज, हमारे सारे के सारे लेटर्स को जो यूजर के द्वारा टाइप किया जाता है, जो यूजर के द्वारा उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, वो उनको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके कंप्यूटर के पास ट्रांसफर करते हैं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बोथ आर द टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सेकेंड वन इज application software. Application software are those software which are written to do our actual work. Application software हमारे वैसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे सारे के सारे वर्क्स को कंप्लीट कराते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोग्राम रिटन फॉर कैलकुलेटिंग सैलरीज ऑफ एम्प्लॉय ऑफ एन ऑफिस। किसी भी ऑफिस में जितने सारे एम्प्लॉय वर्क करने वाले होते हैं, उनके सारे के सारे सैलरी को अगर कैलकुलेट करना हो, अगर बैंकिंग सेक्टर है उसमें जितने भी अकाउंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हों, या कोई भी रिपोर्ट को हम प्रिंटिंग कर रहे हों, ये सारे के सारे जो होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होते हैं। आफ्टर दिस वी विल नो अबाउट द मेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, that is MS Word, MS Excel, PowerPoint, Access. So today we will know about two main application software. First is MS Word and second is MS Excel. MS Word is a word processing programs of Microsoft Office package. MS Word जो होता है वो Microsoft Office package का एक word processing program होता है। In this package, all facilities of a common word processor are available. We can also do many functions of desktop publishing in this program. इस प्रोग्राम में हम डेस्कटॉप और पब्लिशिंग से रिलेटेड सारे के सारे वर्क हम कर सकते हैं। MS Word is called Word in short, हम MS Word को शॉर्ट में Word भी कहते हैं। In this package, facilities of menus, keyboard shortcuts and toolbars are also available. इस प्रोग्राम में बहुत सारे मेनूज होते हैं, हम कीबोर्ड शॉर्टकट का भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारे टूलबार भी अवेलेबल होते हैं। एंड लास्ट वन इज MS Excel. MS Excel is a spreadsheet program of Microsoft Office package. Spreadsheet program, in spreadsheet program, all spreadsheet program is an array of many cells. जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जिसको हम इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्कशीट, जिसको हम वर्कशीट भी बोलते हैं, ये जो होता है वो सेल के रूप में डिवाइडेशन किया गया रहता है, विच आर अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम्स,
या हम सेल को डिफाइन कर सकते हैं, सेल इज द पार्टीशन ऑफ रो एंड कॉलम। जो रो होता है, रो आर हॉरिजॉन्टल एंड कॉलम्स आर वर्टिकल्स। रो हमारे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होते हैं और जो हमारे कॉलम्स होते हैं वो वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ सेल होते हैं। आफ्टर दिस इन सेल वी कैन ऑल्सो फिल फॉर्मूला। सेल में हम फॉर्मूला को फिलअप कर सकते हैं, किसी भी तरह के कैलकुलेशन को हम परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो देयर आर ऑल्सो मेनी फैसिलिटीज इन MS Excel टू फॉर्मेट द डेटा। किसी भी तरह के डेटा को हम फॉर्मेट कर सकते हैं, किसी भी तरह के हम कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। इन MS Excel प्रोग्राम देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फॉर्मूला दैट इज यूज्ड इन दिस प्रोग्राम, and this is very useful program for the office, for the banking sector, for any companies. Third is PowerPoint. PowerPoint is a program to create presentation, and PowerPoint is called a presentation program. In PowerPoint program we can prepare our presentation of many kinds based on slides. PowerPoint हमारा presentation program होता है जिसमें हम किसी भी तरह के प्रेजेंटेशन को इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं। हम बहुत सारे ऑडियंस के सामने इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। पावर पॉइंट्स हेल्प्स अस इन प्रिपेयरिंग अ प्रेजेंटेशन इजीली एंड क्विकली। पावर पॉइंट में हम अपने प्रेजेंटेशन को बहुत ही इजी वे में और बहुत ही क्विक हम इसमें अपने प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, एंड लास्ट इज MS Access. MS Access, that is Microsoft Access, and Microsoft Access is a RDBMS program, that means Relational Database Management System program. In this program we can organize our data in table and do many types of useful operations. MS Access program में हम अपने किसी भी तरह के डेटा को टेबल के फॉर्म में हम प्रिपेयर कर सकते हैं। इन MS Access वी कैन क्रिएट अ डेटाबेस बेस्ट सुटेबल टू आवर रिक्वायरमेंट्स। MS Excel प्रोग्राम में हम अपने रिक्वायरमेंट्स के अनुसार अपने डेटा को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड रिपोर्ट इज ऑल्सो प्रिंटेड, हम इसमें अपने रिपोर्ट को हम प्रिंट भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस फोर फर्स्ट इज MS Word, second is MS Excel, third is PowerPoint, and fourth is MS Access. These four are the program and these four are the package of Microsoft Office, and these are the examples of application software. After that we know about utility software. These are those software package which help us in doing our regular work in a better way. हमारा जो रेगुलर वर्क होता है, जो हम कंप्यूटर पे करते हैं, उनको बेटर वे में, उनको अच्छे से अच्छे तरीके में करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में नॉर्टन एंटीवायरस, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नॉर्टन यूटिलिटीज, नेटस्केप, नेविगेटर, ये सारे के सारे एग्जांपल्स यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के होते हैं, जिसमें हम थोड़ा सा इसके एग्जांपल के बारे में जानेंगे। फर्स्ट होता है नॉर्टन एंटीवायरस। एंटीवायरस को जानने से पहले हम थोड़ा सा वायरस के बारे में जान लेते हैं। वायरस, दैट्स फुल फॉर्म इज विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर साइड। वायरस इज अ वेरी डेंजरस प्रोग्राम that is stored into our computer without our permission. वायरस एक डेंजरस प्रोग्राम होता है कंप्यूटर का, कंप्यूटर के लिए, जो हमारे बिना इंफॉर्मेशन के हमारे कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होता है, स्टोर होता है और कॉपी पेस्ट होते चला जाता है। सो इफ यू वांट टू रिमूव द वायरस इनटू आवर कंप्यूटर, एंड अगर हम अपने कंप्यूटर से वायरस को रिमूव करना चाहें, या अगर हम ये चाहें कि हमारा कंप्यूटर स्मूथली वर्क करना चाहे, हमारे कंप्यूटर में किसी भी तरह का वायरस से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है।
तो उससे क्या होता है, अगर हमारे कंप्यूटर में वायरस होते हैं या अगर कोई पॉसिबिलिटीज होती है वायरस को इंटर करने का, तो वो सारे के सारे पॉसिबिलिटीज इंड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? इट इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज विच हेल्प अस इन गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट एंड रिसीविंग एंड सेंडिंग ईमेल। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये वेब ब्राउजर का एग्जांपल होता है। वेब ब्राउजर जिसके जरिए हम इंटरनेट के फैसिलिटीज को पा सकते हैं, हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, हम किसी भी तरह के मेल को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, या अगर हमें इंटरनेट पर किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को गैदर करना हो और इंटरनेट पर हमारा कोई भी रिक्वायरमेंट हो, तो हम इंटरनेट एक्सप्लोरर के जरिए हम उन सारे के सारे इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर चैप्टर नंबर 1। एंड स्टूडेंट्स, आप जब भी ये वीडियो देखें हमेशा आप अपने पास अपना बुक रखे रहें। जैसे जैसे आपको टॉपिक मिलते जा रहे हैं आप अपने बुक के माध्यम से उसको समझते रहें। जहाँ तक हमने पढ़ाया वहाँ तक में अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप अपने प्रॉब्लम को लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसका एक पार्ट और है, वो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। और इसके बाद आप सारे लोग साइंटिफिक स्टडी एप्स को इंस्टॉल करेंगे। उसमें टूल्स आइकन में होमवर्क का आइकन बना हुआ है, उसमें आपके सारे क्वेश्चन आंसर मिलते चले जाएंगे। आप उसको घर पे होमवर्क को आप कंप्लीट करेंगे, आप नोट्स बनाएंगे, आप अपने पेरेंट्स से उसको साइन कराएंगे और स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे उसको सेंड करेंगे। थैंक यू। Like, share and comments. Please subscribe to this channel and also press the bell icon for further notification. Thank you.